السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب کفر و ضلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ آپس میں ایک دوسرے کو تم سے لڑاتے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائے گا، جیسا کہ کھانے کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یعنی جس طرح کچھ لوگ جمع ہو کر کھانے کی محفل میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھانے کے برتن سرکاتے رہتے ہیں، اور اس میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں. چنانچہ وہ سب بلا تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان برتنوں میں سے جو کچھ چاہتے ہیں لے کر کھاتے ہیں. اسی طرح کفر و ضلالت کے حامل لوگ تمہارے مقابلے پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، اور آخرکار وہ تمہیں ہلاک کریں گے، تمہاری جائیدادیں تباہ کریں گے، تمہارے مال و اسباب لوٹیں گے اور تمہیں خانمہ برباد کریں گے. اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان ان دشمنان دین کے سامنے چارہ ترکی کی طرح ہو جاؤ گے، جس کا جی چاہے گا تمہیں نگل لے گا. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کا ہمارے خلاف جمع ہونا اور ہم پر غالب آ جانا کیا اس سبب سے ہوگا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تم کم تعداد میں ہوگے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اس جھاگ کی سی ہوگی جو دریا نالوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں. یعنی تمہارے اندر جرت و شجاعت اور قوت کا فقدان ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعیف و سستی پیدا کر دے گا. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں ضعیف و سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری. یعنی جب زندگی تمہارے لیے عزیز اور موت تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گی تو تم دشمن کا مقابلہ کرنے اور بہادری کے جوہر دکھانے کے قابل نہیں. خبروں کے آغاز سے قبل ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. پولیس کی نگرانی میں پوری احتیاط کے ساتھ ای وی ایم مشینوں کی منتقلی، انتخابی اشیاء بھی عہدیداران کے حوالے. ضلع کلکٹر. تزائین نو جدید نہرو پارک فاؤنٹین سرکل پر برائے فروغ اردو تحریر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نظام آباد کا قابل تقلید اقدام، اردودہ طبقے سے بھی خوب ستائش. بدلتے زمانے کے ساتھ انسانیت بھی ہو رہی ختم. بیوہ خاتون کی موت پر مالک مکان آخری رسومات کی تیاریوں کے لیے مکان دینے سے کیا انکار. تیز دھوپ میں شمشان گھاٹ میں آخری رسومات کی تیاریاں کرنے پر رشتہ دار مجبور. اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف. ای وی ایم کو ضلع کے مختلف حلقوں میں منتقل کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے. کنٹرول یونٹس، بیلٹ یونٹس کے بعد حلقوں کی ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کے حوالے کر دی گئی. پولیس کی موجودگی میں خصوصی گاڑیوں میں منتقل. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو منتقل کرنے کا عمل جیسے عام انتخابات کے انتظامات کے تحت شروع کیا گیا تھا، اتوار کو مکمل کر لیا گیا. ای وی ایم کو ضلع مرکز میں ای وی ایم گودام سے متعلقہ اسمبلی حلقے کی مرکز میں منتقل کرنے کا عمل ہفتے کو شروع ہوا اور اتوار کی شام تک جاری رہا. ضلع انتخابی افسر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا اور پی یادی ریڈی کی نگرانی میں تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں
ईवीएम की नकलो हरकत को आसानी से मुकम्मल किया गया। रैंडमाइजेशन लिस्ट के बाद कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स और वीवीपैट्स मुतालिका हलकों के रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिए गए। इन्हें हलके के मरकज में मुंतकिल करके स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखा गया। इस अमल में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एम मकरंद, निजामाबाद दही बोहदन, बांसवाड़ा हलका रिटर्निंग अफसरान राजेंद्र कुमार और मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इंतखाबी ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी की शिकायतों का फौरी जवाब देने की हिदायत दी। तजवीज़ दिया कि कमेटी की जानिब से इजाज़तनामा जारी करने के मामले में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ शिकायत का फौरी जवाब दे रियासत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मशवरा दिया कि आम इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात और एहतियाती तदाबीर के बारे में जिले इंतखाबी अफसरान एससीएस रियासती डीजीपी ए कुमार यादव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीईओ ने पुलिस कमिश्नरों को हिदायत दी। इन्होंने तजवीज़ दी कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की शिकायत की फौरी छानबीन की जाए और तफसीली रिपोर्ट फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाए। जिला कलेक्टर को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए जारी की जाने वाली मंजूरियों में कोई ताख़ीर ना हो और जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाए। एमसी को रोजाना मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और शिकायत की बाकायदगी से छानबीन की जाए और फील्ड लेवल की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। सी विजिल ने तजवीज़ दी कि ऐप के बारे में अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए वसी प्रोग्राम शुरू किए जाए। बादशाह इन्होंने कहा कि नकदी जब्त करने के मामले में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और आम लोगों और कारोबारी इदारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहां 10 लाख से ज्यादा की नकदी रकम जब्त की जाती उसे इनकम टैक्स महकमे के अफसरान को जब्त करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि जब नकदी, सोना और दीगर अशिया जब्त की जाती है तो जो कुछ भी जब्त किया गया है इसकी तफसीलात वक्तन फवक्तन मीडिया पर जाहिर की जाए ताकि मुकम्मल शिफाफियत बरकरार रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, पी यादी रेड्डी, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर मकरंद, मुख्तलिफ महकमे जात के जिला अफसरान और मुतल्लिका हलकों के रिटर्निंग अफसरान दीगर भी मौजूद थे। पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी जानों को खतरे में डाल रही है। पुलिस की कुर्बानियों को तस्लीम करें और हमेशा ताउन करें। एडिशनल डीसीपी जयराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस शहीदान यादगिरी हफ्ता हर साल अक्टूबर के माह में मनाया जाता है ताकि अमन व सलामती के क़याम में जान देने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद किया जा सके। इसी के तहत यौम परचम के मौके पर डिचपल्ली मंडल मरकज से बाइक रैली निकाली गई। जयराम डिचपल्ली पुलिस स्टेशन के एडिशनल डीसीपी 7th बटालियन के कमांडेंट राम प्रकाश ने एसीपी किरण कुमार के हमरा परचम लहराया और रैली का आगाज किया। बाद अज़ां ये बाइक रैली जिला मरकज से पुलिस परेड ग्राउंड तक पहुंची। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी जयराम ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन अवाम की हिफाजत के लिए मुसलसल ताउन कर रहे हैं। वो अपने खानदानों को भूलकर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर फराइज सरे अंजाम दे रहे हैं। दुश्मन के हाथों कई अहलकार शहीद हुए और इनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इस प्रोग्राम में सीआई कृष्णा, महेश, मुख्तलिफ मंडलों के पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। అనుక్షణం ప్రాణాలు గుప్పిలో పెట్టుకొని ఉద్యోగాలు చేసిన ఉంటారు మన సీనియర్లంతా కూడా. ఇప్పుడు నారాయణ సింగ్, ఆమోద్, గౌతసే గారు, లింగురామ్, రాజన్న, ఇంకా సీనియర్లు ఎవరో ఉన్నారో వీరంతా కూడా నిత్యం రోడ్డు మీదకి పోతే మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వస్తారా అనేది అనుమానంగా ఉండేది. పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో పనిచేసినప్పుడు కూడా వైన్ సైడ్ ఉందని నాకు తెలియదు కానీ కరీంనగర్ సైడ్ అయితే బస్సులలో ప్రయాణిస్తుంటే అనుమానంగా వచ్చి దింపి చంపారు. ఇళ్లల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకుపోయి చంపారు. మన పోలీస్ ఆఫీసర్లు నక్సలైట్ విపరీతంగా చనిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ సందర్భాల్లో వాళ్ళు ప్రాణాలు తెగి तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद का काबिल तकलीद इक़दाम तज़ाइन नो जदीद नेहरू पार्क सर्कल पर बराए फ़रोग़ उर्दू तहरीक।
तेलंगाना में उर्दू जुबान को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। रियासत भर बिलखुसूस जिला व शहर निजामाबाद में उर्दू जुबान के फरोग व बका के लिए नौ मुंतखबा सदूर व अराकीन तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद में उम्दा और काबिल तकलीफ पहल का आगाज करते हुए शहर के तजाइन नौ जदीद नेहरू पार्क सर्कल पर बराए फरोग उर्दू के तौर पर फव्वारा नेहरू पार्क सर्कल चमन की इफ्तिताई तख्ती पर उर्दू की तहरीर को यकीनी बनाए। इस मौके पर सरप्रस्त उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद अशफाक अहमद खान पापा चीफ एडिटर रोजनामा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स की सरप्रस्ती में उर्दू तहरीर की परचम कुशाई अमल में लाई गई। तकरीब के दौरान एम.ए. माजिद रियासती सेक्रेटरी फेडरेशन वो स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा निजामाबाद, मोहम्मद अफजल खान ब्यूरो चीफ परवास टीवी को सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद, नायब सदर साजिद अख्तर, मौलाना खतीर हुसामी खाजिम, मोहम्मद यूसुफ खान ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद अमीर अली पब्लिसिटी सेक्रेटरी, अरकान अतीक अहमद खान, मोहम्मद आरिफ अहमद, बिलाल खान, कबीर खान, शेख इमरान के अलावा सदर उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद मोहम्मद खालिद खान, ब्यूरो चीफ अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर, अहमद अली खान स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा, रहनुमाए दक्कन व सीनियर सहाफ़ी निजामाबाद व दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। इस मौके पर सरप्रस्त अशफाक अहमद खान व फेडरेशन सदर अफजल खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासती सतह पर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का क़याम के जरिए रियासत भर में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा रखने वाली उर्दू जुबान के फरोग व बका के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद जिला व शहर निजामाबाद में उर्दू जुबान के फरोग व बका के लिए जद्दोजहद का आगाज किया है और सरकारी व गैर सरकारी इदारों में भी उर्दू जुबान के फरोग और इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कामयाब पहल की जाए। आज इन्होंने बरसर इक़्तिदार हुकूमत और इसके कायदीन से ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इस तकरीब के मौके पर मुतल्लिका डिवीज़न सीनियर कॉर्पोरेटर 58 मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने शिरकत करते हुए फेडरेशन की जानिब से उर्दू के फरोग व बका के लिए की जाने वाली खिदमत पर तमाम सदूर व अराकीन को मुबारकबाद पेश की। आज TUWJF की जानिब से नेहरू पार्क पर जदीद फाउंटेन कायम किया गया था फव्वारा, उस पर उर्दू तहरीर गायब थी। इसी ज़मीन में हमारी यूनियन ने हम सब ने मिलकर यहाँ पर उर्दू तहरीर लिखी और मैं तमामी दुकानदारों से उर्दू दान तबके से ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी दुकानों पर उर्दू तहरीर करें ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों तक हमारी नस्लों तक उर्दू पहुँच सके, क्योंकि हमारा जितना दीनी मवाद है सब उर्दू में है। अगर हम अपने साथ उर्दू को फ़रोग देंगे तभी सरकारी तौर पर भी उर्दू का फ़र्क मुमकिन है। और जो चूक हुई थी हमने उसको दुरुस्त किया। ऐसे ही जहाँ जहाँ उर्दू नहीं होगी नेहरू पार्क पर को हाल ही में हमारे रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से जो फव्वारा नस्ब किया गया उसमें इंतज़ामा की तरफ से कुछ चूक हो गई, उसके ऊपर उर्दू में तहरीर नहीं किया गया बोर्ड को, क्योंकि ये इलाका उर्दू बोलने वालों का है। इसको महसूस करते हुए हम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की ज़िले निज़ामाबाद की शाख की जानिब से हमारे ज़िले सदर मोहम्मद अफजल खान की क़यादत में हमने वॉलंटरी तौर पर उर्दू का जो बोर्ड नस्ब किया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस किस्म की गलती ना हो। अगर कुछ ऐसे वाक़या चूक हो गई तो उसके लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन तैयार है। और मैं हमारे सदर ज़िला और तमाम निज़ामाबाद शाख के अहदेदारान अराकीन को मैं इस इक़दाम पर जो काबिल तखलीद है अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से नेहरू पार्क पर उर्दू को फ़रोग़ दीजिए और नेहरू पार्क फव्वारा बोलकर और उसके ऊपर उर्दू को फ़रोग़ दीजिए बोलकर एक स्टिकर लगाए हैं। मैं तेलंगाना उर्दू एसोसिएशन का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग के एसोसिएशन उर्दू के लिए और ज़्यादा काम करेंगे, उर्दू को फ़रोग़ देंगे। मैं फिर एक बार आप लोगों को सबको उर्दू वालों को मुबारकबाद देता हूं। मोक्ष
फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तयाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण, सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स वेयर अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट। पिनाकल ब्लॉग्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर व लापर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉग्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉग्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, गुलाम चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। 27 अक्टूबर बरोज जुमा बाद नमाज जुमा बामुकाम शलेजा ग्राउंड आटो नगर से 11वीं शरीफ की निस्बत से आला हजरत एकेडमी की जानिब से अजीमुशान जुलूस गौसिया का इनेकाद अमल में लाया जाए। इंशाअल्लाह जुलूस गौसिया बोधन बस स्टैंड से होकर खिला रोड मस्जिद हाशमी पर इख्तिताम पजीर होगा। आशिक़ाने औलिया से जोक दरजोश शिरकत की आला हजरत एकेडमी ज़िम्मेदार मौलाना करीमुद्दीन कमाल की अपील। जुलूस गौसिया की तैयारियां जोरों से जारी। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तारीख़ और महीना जो मंसूब है 11वीं शरीफ का, उसमें पहली मरतबा निज़ामाबाद शहर में जुलूस गौसिया का आगाज़ अमल में आ रहा है और आटो नगर से बोधन बस स्टैंड होता हुआ किला रोड पर हाशमी मस्जिद के करीब ये जुलूस अख्तिताम पजीर होगा और 27 अक्टूबर यानि 11वीं शरीफ की 11 तारीख़ को जुमा के दिन, जुमा के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से निकलता हुआ किला रोड हाशमी मस्जिद के पास पहुँचकर अख्तिताम पजीर होगा और औलिया अल्लाह के अक़ीदतमंद अक़ीदत व महब्बत के साथ उसमें शरीक होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और तैयारियां इसकी जारी हैं और तैयारियां उसका ज़ोर व शोर जो भी है वो अपने अपने अंदाज में काम आगे बढ़ रहा है और तमाम औलिया के अक़ीदतमंदों से गुजारिश की गई है कि उस जुलूस में शरीक हों और अपनी अक़ीदतों और महब्बतों का इजहार करें। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात को देखते हुए कई कायदीन बड़ी तादाद में BRS पार्टी में हो रहे हैं शामिल। BRS हुकूमत गरीबों की तरफ राग़िब है। CM KCR की तरक्याती हुकूमत मुल्क भर में एक मिसाल। MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन का पुरजोश बयान।
120 BRS मेंबरान ने दही कानून साज बाजी रेड्डी गोवर्धन की मौजूदगी में BRS पार्टी के चौथे डिवीजन के BC ब्रांच सदर M नरसिम्हाचारी की क़ियादत में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दही MLA कैंप ऑफिस में मुनक्किद मीटिंग में इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम जातों और बिरादरियों के साथ मिलकर कई तरक्याती प्रोग्राम अंजाम देंगे और कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों की वजह से जात बिरादरियों से नुमाइंदे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी को जीतने और तेलंगाना के सुनहरे ख्वाब को पूरा करने के लिए सब मिलकर काम करने की बात बताई। डी गोपाल, डी नायडू, डी पापैया, साइलू और गंगा मां ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में BRS मंडल के सदर M मधुकर राव, TRS सदर लीडर और दीगर भी मौजूद थे। डिवीजन 46 महिला फुलांग के पेट्रोल पंप से मुतसिल सड़क इंतहाई मखदूश व तंग, नाजायज कब्जे जात की वजह सड़क तंग हो चुकी, ऑटो का गुजर पाना भी मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता 20 सालों से इस सड़क का यही हाल। ये लावारिस सड़क और गली बन गई। तामीर के लिए मटेरियल डाला गया, फिर तामीरी मटेरियल को वहां से हटा दिया गया, जिस पर अवाम की बरहमी व नाराजगी। जल्द सहूलतें फराम करने का मुतालबा। 22 साल से पूरे फुलांग के अंदर जो सो हर काम जो सो सीसी रोडा गिरे। इधर 22 साल में ना ये गली में कोई आया, ना कोई रोड है, ना कुछ है। वो डक्स कंकर वो लेके आए, यहाँ डाले, बना रहे साहब बोल के बोले, तो वो लोग ठीक है भाई बना रहे तो अच्छी बात है बोल के हम लोग ठहरे। फिर उसके बाद रात में आके पूरे गाड़ियाँ भर लेके वो माल पूरा मटेरियल लेके चले गए। ये हालत जो सो आज 22 साल होगा साहब ये गली में कोई जो सो काउंसलर आए, अब तक 4 काउंसलर आए, कोई कुछ नहीं करा। हाँ आते कर देते, अभी आता ये गली हो जा रही, अब ये तुम्हारा नंबर है, ऐसा बोलते चले जाते। माल मटेरियल आया तो हम बोले चलो भाई काम तो हो रहा ना, पूरा लाके जो सो माल लेके चले गए। ये जितना भी देखो तुम जो सो ये गली में जो सो आके तुम जो सो लोग चलने नहीं आता साहब, जाने का रास्ते में पूरा साइकिल हालांकि जो सो इतना जो सो मेन रोड है इधर, यहाँ पर जो सो ये हाल है, जरा देखना। अगर हम गलत बोल रहे तो जो सो ये वीडियोग्राफी ले लो मस्जिद में आई, अगर हम गलत। 22 साल हुआ देखो, ये खड्डे, ये नालियाँ, ये पूरे जो सो बंद है। और जो का क्या है इलीगल, मैं भी घुस जा रहा हूँ, उन्हें भी घुस जा रहे, उन्हें भी घुस जा रहे, खत्म कर दिए ये रास्ता। ऐसा हो तो कब तक होंगे? अब तक 3 काउंसलर आए, तीनों को भी बोल बोल के थक गए। फुलांग का जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे की जो बारीक गली है उसको सीमेंट रोड डालने के लिए मटेरियल आया और रात रात चले गया। और रोड का ये हाल है कि 30 फीट की रोड जाके 5 फीट की हो गई। लोग घर हटके बना लिए और नालियों के ऊपर पूरा यहाँ से वहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर लिए। और अंदर कोई बीमार है, परेशान है, बीमार आदमी को कैसा, पेशेंट को कैसा ले आना? ये गली का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये गली का कैसा होगा? 5 फीट की रोड है वो गली, ऑटो नहीं गए, ऐसा कर दिए गली को। नालियों के ऊपर पूरा यहाँ से वहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर दिए और ऊपर से नलों के गड़े ये बड़े बड़े। अगर कोई रात में आ गया, अंधेरे में गिर गया तो बेचारे का जनाजा निकल जाता। तो लिहाजा गुजारिश है कि जो है इस गली की तरफ तवज्जो दी जाए। लावारिस गली हो गई जैसा हो गया वो गली का हाल, पूरी नाली के ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन है यहाँ से वहाँ तक। हमारी गली में सड़कों की प्रॉब्लम थी, हम इससे पहले एप्लीकेशन दिए थे सड़कों के बारे में। छोटी सी गली है, ज़्यादा बड़ी थी तो छोटी कर दिए। ऑटो आने की प्रॉब्लम है, 4 व्हीलर्स के ट्रैवल्स नहीं हो सकते। इसकी वजह से हम लोग एप्लीकेशन दिए तो सड़कों के बारे में माल मटेरियल पड़ गया था, आया था, लेकिन फिर वापस उठा के क्यों लेके गए? क्या बात है? हमारा मटेरियल दूसरी गली में क्यों डाले, दूसरी वार्ड में क्यों डाले? वजह क्या है डालने की? फिर डाले तो डाले, हमारा भी वैसे ही करो, लाके डालो, हमारी भी तामीर करो, हमारी भी सड़क की तामीर करो। शिकायत है काउंसलर से। बदलते जमाने में इंसानियत सिसक कर दम तोड़ रही, ऐसा ही एक वाकया हमारे अपने शहर में सामने आया। बेवा ज़ईफ खातून की मौत के बाद मालिक मकान ने आखिरी रसूमात घर में अदा करने की इजाजत नहीं दी। मुतवफ़्फ़ी खानदान के रिश्तेदार शमशान घाट में तेज धूप में इंतजार वो आखिरी रसूमात की तैयारियां करने पर मजबूर। तफसील देखते हैं। शहर के कोट गली में किराए के मकान में जिंदगी बसर करने वाली ज़ईफ बेवा खातून नागम्मा, जो फेफड़ों के आरसे में मुब्तला थी और इलाज के लिए जिला सरकारी दवाखाने में भर्ती किया गया था।
सरकारी दवाखाने में ही मर्ज के चलते उसकी मौत हो गई। ज़ईफ नागा माँ बेवा थी और इसको 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी। नागा माँ किराए के मकान में तन्हा जिंदगी बसर कर रही थी। मौत की इत्तला के बाद मालिक मकान ने नागा माँ की आखिरी रसूमात और आखिरी दीदार के लिए अपना मकान देने से इनकार कर दिया और बताया कि त्यौहार है और वो अपने मकान में आखिरी रसूमात की इजाजत नहीं दे सकता। जिसके बाद नागा माँ की मैयत को कुछ घंटों के लिए जिला सरकारी दवाखाने में ही रखा गया। फिर दवाखाने से शमशान घाट लाकर लवाहिकीन ने आखिरी रसूमात की तैयारियां तेज धूप में अंजाम दी, जिसे देख मुकामी अवाम ने अफसोस जाहिर किया और बदलते जमाने में इंसानियत खत्म होने का इन्होंने इजहार किया। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस की निगरानी में पूरी एहतियात के साथ ईवीएम मशीनों की मुंतकिली, इंतखाबी अशिया भी ओहदेदारान के हवाले। जिला कलेक्टर तज़ाइने नौ जदीद नेहरू पार्क फाउंटेन सर्कल पर बराए फरोग उर्दू तहरीर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद का काबिल तकलीफ इक़दाम उर्दूदा तबके से भी खूब सताइश। बदलते जमाने के साथ इंसानियत भी हो रही खत्म। बेवा खातून की मौत पर मालिक मकान आखिरी रस्मात की तैयारियों के लिए मकान देने से किया इनकार। तेज धूप में शमशान घाट में आखिरी रस्मात की तैयारियां करने पर रिश्तेदार मजबूर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह।